Hello and welcome all of you on this wonderful platform called We Capacitate. My name is Ruchi Neelam Doctor. हर दिन की तरह, हर सेशन की तरह आज भी हम एक नया सेशन आपके साथ लेकर आए हैं. Why not capacitate? Why not network marketing? That is what our concept, and we share and talk with various dignitaries, various coaches, and various networker in this nation to share with you about this wonderful industry called direct selling. डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लेकर बहुत सारे कंफ्यूजन है लोगों के माइंड में. रोज कहीं ना कहीं किसी के पास बात करने के बाद there is a lot of misconception about this industry, but we will be talking and sharing and knowing how you can create your life better than what you have through direct selling industry. Whatever dreams you have for yourself, you can achieve them. You can realize all the dreams and give the best to your family, and we can also help our nation by raising our GDP. Ultimately, it's all about performance. Ultimately, it's all about driving yourself in a positive direction. Ultimately, it's all about a powerful law of attraction which can create a wealth for yourself. But how we can do that? What are the ways to achieve that what we have decided? Today with us on this platform, we have a wonderful dignitary whose name is Mithilesh Chudgar. He's from Ahmedabad, Gujarat, India. But let me share this with you. There is so much to learn from Mithilesh ji apart from direct selling industry. He is a man who has helped n number of people for their health, their wealth, and their actual mindset. Life is all about what is your mindset. Life is all about how do you think and how do you perform. So he is a man who is from Center for Excellence for Performance. And there is so much to learn from his personal and professional life. This is what we are going to unfold in today's session. So thank you so much, Mithilesh ji, for coming here on this show and being with us. Thank you so much for inviting me. So Mithilesh ji, we want to know something about from your side, a journey of Mithilesh Chudgar as a coach, as a performance coach, and sometimes it happens that we definitely go down in our mindset. Sometimes it happens that when we talk about why not network marketing, what is your actual insight about network marketing industry and how we can connect this performance with network marketing and help so many people to achieve their success? What is your point of view, sir? Fine. So I believe there were 3 questions you asked, and मैं इसको हिंदी में रखूंगा. बात कर रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग की. अगर नेटवर्क मार्केटिंग की बात कर रहे हैं तो हम आम आदमी की बात कर रहे हैं, क्योंकि एक आम आदमी जुड़ता है नेटवर्क मार्केटिंग से. अब थोड़ा ट्रेंड बदल रहा है. अब कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव्स, कॉर्पोरेट लीडर्स भी जुड़ने लगे हैं. But what I understand is the large majority of people, जो एक बहुत बड़ा जत्था है जो इस इंडस्ट्री में है, जो इस इंडस्ट्री में अपने सपने ढूंढ रहा है, वो एक आम आदमी होता है. तो मैं चाहता हूँ कि इसको हम पूरा हिंदी में रखेंगे. जी सर. ठीक है. तो आपने मुझे शायद 3 सवाल पूछे. एक तो आपने मुझे मेरी जर्नी के बारे में पूछा, फिर दूसरा आपने मुझे पूछा कि व्हाई नॉट नेटवर्क मार्केटिंग, और तीसरा आपने मुझे ये पूछा कि परफॉर्मेंस कैसे इम्प्रूव किया जाए. राइट सर. इस तरह से नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़े लोगों की मदद की जाए ताकि वो बेहतर कर पाए. तो मैं शुरू करूंगा अपनी जर्नी से. जी सर. ठीक है. तो अब परफॉर्मेंस कोचिंग, मैंने कभी सोचा नहीं था मैं कोच बनूंगा. आई नेवर हैड दिस गोल. जो लोग बोलते हैं ना गोल होना चाहिए, पर मेरे पास ये गोल नहीं था, कभी नहीं था. इट हैपेंड. ऐसा कहते हैं ना कि एक बहाव सा चल रहा था पानी का, और मैं उस बहाव में बहते गया. ठीक है. और फिर यहाँ पहुँच गया जहाँ पर मैं आज हूँ. पर एक छोटी सी कहानी शेयर करूँगा. कहानी ये है कि मैंने अपनी करियर की शुरुआत सेल्स से की, और मैं बहुत बेहतरीन सेल्स के लोगों में से एक रहा हूँ. मैं हर 2 या 3 प्रॉस्पेक्ट में से एक डील क्लोज किया करता था. मेरा ट्रैक रिकॉर्ड बहुत स्ट्रांग रहा, वर्षों तक.
ठीक है। फिर सेल्स, डायरेक्ट सेलिंग ही की हमेशा, ठेला उठा के जाते थे, घंटी बजाते थे और माल बेचते थे। यही करते हुए बड़े हुए हैं हम तो उसके बाद जो है मतलब साथ में पढ़ाई भी करते थे, इंजीनियरिंग की। इंजीनियरिंग करने के बाद जो है मैं एकेडमिक्स में काफ़ी अच्छा रहा हूँ मैं। तो आई वॉज 5th इन महाराष्ट्र। और अपने टाइम पे इंजीनियरिंग विदाउट AT-KT क्लियर करना नामुमकिन सा होता था। तो हम जो टॉप 5 है ना, उसमें सिर्फ हम 2 थे जिन्होंने विदाउट AT-KT क्लियर किया था। एकेडमिक्स में भी काफ़ी अच्छा था। तो सभी लोग चाहते थे कि मैं कोई बड़ी कॉर्पोरेट, क्योंकि सिर्फ मेरा रिज्यूमे रखना था। एकेडमिक्स इतना स्ट्रॉन्ग एंड दैट टू विदाउट AT-KT, और किसी भी कंपनी में सिर्फ रिज्यूमे रखना था। और वो लोग जो है मतलब बाहें पसारे खड़े थे कि बेटा आ जाओ, इतना स्ट्रॉन्ग एकेडमिक्स था। पर सोचा ये हमने कि डायरेक्ट सेलिंग ही कंटिन्यू करेंगे। तो आफ्टर इंजीनियरिंग डायरेक्ट सेलिंग कंटिन्यू करी, उसमें काफ़ी सारा काम किया। उसके बाद अपनी कंपनीज लॉन्च करी, 1, 2, 3, बहुत सारे क्या कहते हैं वेंचर्स, एक के बाद एक लॉन्च किए। कुछ वेंचर्स में बहुत सीखने मिला का मतलब होता है कि पैसा गया। करेक्ट। मतलब सारे वेंचर तो सक्सेसफुल नहीं होते हैं ना, तो कुछ वेंचर्स ऐसे थे कि जिसमें पैसा गया लेकिन सीखा बहुत। कुछ वेंचर्स ऐसे थे जिसमें ना सीखने मिला ना पैसा मिला, तो वो हमने खुद बंद कर दिए। और 4 वेंचर्स ऐसे थे जिसमें पैसा मिला, अच्छा पैसा मिला, तो उनको कंटिन्यू किया। कंटिन्यू करने के बाद लाइफ में एक अच्छी स्टेज आई। लेकिन वो जो सेल्स का आदमी अंदर बैठा था ना, वो बहुत एक्टिव रहा हमेशा। तो जब मेरी कंपनी के अंदर सेल्स की टीम होती थी ना, मैं उनको चैलेंज दिया करता था। और चैलेंज ये होती थी कि इट वाज अ मंथ 30 डे चैलेंज सॉर्ट ऑफ, कि भाई ये 30 दिन मैं भी फील्ड में उतरता हूँ और मुझसे ज़्यादा जो डील करेगा उसके लिए अलग इंसेंटिव होता था। मतलब एक तो सेल्स के जो इंसेंटिव्स होते थे वो तो होते ही थे, पर उस पर्टिकुलर महीने में जब मैं भी फील्ड में हूँ और जब जो सेल्स का बंदा मुझसे ज़्यादा स्ट्राइक करता है, ही गेट्स सम वेरी स्पेशल इंसेंटिव। तो एक मोटिवेशन भी बनता था, टीम को ही मजा आता था। और कभी कोई सेल्स का बंदा मुझसे जीत नहीं पाया। पर 1999 एक दिन, एक महीना ऐसा आया कि उस महीने में मैंने 64 प्रोस्पेक्ट्स देखे, उनसे बात की, मेरी एक भी डील नहीं हुई। एक ही महीने में और एक भी डील नहीं हुई। तो एक भी डील नहीं हुई? एक भी नहीं हुई। ओके। तो 64 में मेरी एटलीस्ट 30 से 35 डीलें होनी ही चाहिए, लाइक दैट्स अ रूल। करेक्ट। उस महीने में एक भी नहीं हुई। तो अब जो है चलिए ठीक है, मतलब ये अफसोस नहीं था कि कोई जीत गया मुझसे, किसी ना किसी को तो जीतना ही था। क्योंकि ये जो है हार जीत की बात नहीं थी, तो टीम का मोटिवेशन था। जब भी ये होता था उस महीने में जो है हम जितना भी मतलब सेल्स रेवेन्यू जनरेट करते थे ना, उस एक महीने में हम उसका 3-4 गुना रेवेन्यू कर लेते थे। तो मेरे लिए तो इट वाज मोटिवेटिंग द टीम और जनरेटिंग रेवेन्यू। पर मेरी डील नहीं हुई, तो मैंने सबसे पहले एक साइकोलॉजिस्ट ढूंढा और मैं उसको मिलने गया। मैंने कहा भैया मेरी ऐसी प्रॉब्लम है, ठीक है, कैन यू हेल्प मी? तो बंदा सिर खुजाते हुए मेरे को देख रहे हंस रहा है। लेकिन तो लोगों के पास प्रॉब्लम होती है, they don't come to us, you don't have a problem, and then you come to no problem. 64 prospects, no deals, something wrong with me, my friend, I need you to help me. तो बंदा कहता है कि ओके चलो ठीक है। फिर एक बड़ा क्वेश्चनर था, हमने पूरा क्वेश्चनर फिल किया, सब हो गया। फिर मुझे कहता है सॉरी, क्लिनिकली नथिंग रॉन्ग विथ यू। एक क्लिनिकली वर्ड बड़ा कमाल का है, एंड आई कैन नॉट हेल्प। तो बताओ कौन मदद कर सकता है? लेट्स गो टू माय सीनियर। तो उसके सीनियर के पास गए, ये बंदा भी साथ में आए इस उम्मीद से कि शायद उसको सीखने मिल जाए। उसके सीनियर ने यही बात करी, क्लिनिकली नथिंग रॉन्ग विथ यू। मैंने कहा यार दिस इज एब्सोल्यूट नॉनसेंस। मतलब आप लोग ये चाहते हो कि मैं वापस जाऊं और ये मेरा इश्यू कंटिन्यू हो और ये इतना एस्केलेट हो जाए
कि एक दिन आई गो थ्रू अ ब्रेकडाउन, फिर मैं आपके पास आऊँ और आप लोग मुझे बुलाओ, आ जाओ, क्लिनिकली समथिंग रॉन्ग विथ यू ना। तो मैंने कहा यार इंजीनियर हूँ मैं, मुझे सिखाया है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस और आप लोग बात कर रहे हो ब्रेकडाउन मेंटेनेंस की। फॉर मी दिस इज अटर नॉनसेंस। यहाँ से मेरी जर्नी की शुरुआत होती है। मैंने जो स्टडी किया, जो रिसर्च किया, उसकी शुरुआत यहाँ से हुई। तो ये एक वाक्य है जिसने मेरी लाइफ में एक यू टर्न तो नहीं कह सकते पर एक टर्न ले आया। और फिर मैं इस फील्ड में बहुत सारा कुछ पढ़ता था, बहुत अभ्यास करता था। फिर एक स्टेज आया जब एक ऑर्गेनाइज्ड रिसर्च शुरू हुआ। आई हैव अ फ्यू रिसर्च पेपर्स पब्लिश्ड एंड माय एरिया ऑफ वर्क इज ब्रेन लर्निंग एंड परफॉर्मेंस। एक इंजीनियर साइकोलॉजिकल रिसर्च में उतरता है और साइकोलॉजी रिसर्च करता है, पेपर्स लिखता है, पेपर्स पब्लिश होते हैं, इंटरनेशनली लोग मुझे जानते हैं फॉर द कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड। इवेंचुअली फिर कोचिंग की जर्नी शुरू होती है। फिर जो मैंने सीखा समझा उस चीज़ को मैं एग्जीक्यूट करना मैंने शुरू किया ताकि इस सोच के साथ कि मैं लोगों की हेल्प कर पाऊँ। तो दैट्स हाउ मैं परफॉर्मेंस कोच बन गया। कभी बनना नहीं था पर बन गया। और फॉर्चुनेटली विद द ग्रेस ऑफ गॉड रिजल्ट अच्छे आते थे, लोगों को बड़ा मजा आता था, रिजल्ट अच्छे मिले। ठीक है, तो परफॉर्मेंस कोचिंग के अलग अलग मॉडल एक के बाद एक लॉन्च किए। बिजनेस परफॉर्मेंस करते थे एंटरप्रेन्योर्स के साथ, फिर एकेडमिक परफॉर्मेंस लेके आए स्टूडेंट्स के साथ। तो मैं स्टूडेंट्स के साथ बहुत, उनको एकेडमिक्स में परफॉर्म करना होता है, रिजल्ट बेहतर लाना है। ठीक है, तो एकेडमिक परफॉर्मेंस लॉन्च किया। उसके बाद स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस में आए। तो आज जो है टेनिस, चेस, टेबल टेनिस, बैडमिंटन और गोल्फ, 5 स्पोर्ट्स के साथ में मैं एसोसिएटेड हूँ एंड आई एम कोचिंग स्पोर्ट्समैन टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस टू पीक व्हाइल परफॉर्मिंग। ठीक है, तो इवेंचुअली काम करते करते जो है बहुत सारा काम हो गया। और अब कोविड में तो बड़ा मजा आ गया, पूरी दुनिया जूम पे है। तो फॉर्चुनेटली जो है दुनिया भर में क्लाइंट्स हैं और परफॉर्मेंस कोचिंग कर रहे हैं। तो दिस इज द जर्नी ऑफ एन इंजीनियर बिकमिंग अ साइकोलॉजिकल रिसर्चर, हैविंग पेपर्स पब्लिश्ड, टू वर्किंग एज अ परफॉर्मेंस कोच फ्रॉम द नॉलेज दैट आई हैड आउट ऑफ ऑल द रिसर्च दैट आई डिड। ठीक है, फिर साथ में कुछ चीजें सीखी, एनएलपी सीखा, ठीक है, हिप्नोसिस सीखा। ठीक है, ये ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में सीखी ये 2 चीजें। तो उसके बाद में बहुत सारी चीजें सीखी जो कि ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में नहीं सीखी पर बहुत कॉन्क्रीट सीखी। ठीक है, जैसे एक होता है न्यूरो हिप्नो रीपैटर्निंग, जैसे एक होता है साइको साइबरनेटिक्स, राइट, जैसे एक होता है ह्यूमन डिजाइन इंजीनियरिंग, जैसे एक होता है न्यूरोसिमेंटिक्स। तो ये ऐसे बहुत सारे विज्ञान हैं, ये सारे ऐसे 18 डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइंसेस मैंने सीखे समझे और इसके रिलेट करता हूँ मैं ब्रेन के साथ में कि मेरा एरिया ऑफ वर्क है ब्रेन लर्निंग एंड परफॉर्मेंस। तो ये बहुत साइंटिफिक फॉर्म में काम करता हूँ और मेरी जो स्ट्रेंथ है, मैं योगिक फिलोसॉफी को इस न्यूरो साइंस के साथ ब्लेंड करता हूँ। और योगिक फिलोसॉफी के जो बहुत सारे अलग अलग कंसेप्ट है, एग्जाम्पल वर्तमान में कैसे जीना, तो बहुत सारे लोग सिखाते हैं और सारे लोग या तो मेडिटेशन बोलते हैं या ब्रीदिंग पे फोकस करना बोलते हैं। इवेंचुअली 2, 5, 10, 15 साल में हो जाए। ठीक है, पर मैं इसको जब न्यूरो साइंस और मेरी समझ के साथ जोड़ता हूँ तो ये 15 दिन में होता है। तो इस तरह के रिजल्ट्स लोगों को मिले हैं। आई एम ग्रेटफुल टू गॉड कि मैं ऐसा कुछ काम कर पाता हूँ। ठीक है, तो ये रही मेरी जर्नी की बात। अब आपने दूसरा एक सवाल पूछा था मुझे अबाउट व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग। Actually, I ask why not network marketing? Why not network marketing? So the reason behind asking this question this way, सर मैं बहुत सारे लोगों को मिलती हूँ और जब इंटरेक्शन होता है
तो जब कोई पेरेंट के साथ बातचीत होती है तो बोलते हैं मेरे अपने बेटे को मैं डॉक्टर बनाना चाहता हूँ, इंजीनियर बनाना चाहता हूँ, मैं अपने बेटे को कहीं एरोनॉटिकल इंजीनियर, मैं कुछ और ऐसा सोच रहा हूँ जो अपकमिंग फील्ड है, जैसे आजकल क्लिनिकल रिसर्च एंड देयर आर साइकोलॉजी एंड देयर आर आर्टिस्टिक आर्ट में भी बहुत सारी अलग अलग ब्रांचेस हैं. सो people have understanding about कि हाँ मेरा बेटा ये करना चाहिए, मेरी बेटी ये करनी चाहिए. when it comes to network marketing, so ये कोई ऑप्शन ही नहीं है. लोगों को लगता है दिस इज नॉट एन ऑप्शन. ऐसा कोई मतलब नेटवर्क मार्केटिंग होता क्या, ये अगर टाइम पास के लिए कर लो, या तो फिर आपके पास कोई काम नहीं बचा है तो कर लो, या तो फिर है ना अगर आपके पास इतनी मतलब आपको कोई 15,000 की नौकरी देने के लिए भी तैयार नहीं है तो कम से कम तुम नेटवर्क मार्केटिंग तो कर ही लो. तो दिस इज व्हाट पीपल आर हैविंग अंडरस्टैंडिंग अबाउट एन इंडस्ट्री व्हिच इज ऑलमोस्ट $1.7 बिलियन टर्नओवर इंडस्ट्री. तो मैं इसलिए आपको ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि आपके पास उसका कोई ऐसा मतलब आंसर हो ठोस, हमारे साथ कुछ ऐसी बात शेयर कर पाए. व्हाई नॉट नेटवर्क मार्केटिंग? तो हमारी ऑडियंस को आप क्या कहना चाहिए? देखिए, आज मेरा एक सेशन था जूम पे, जिसमें एक टॉपिक छिड़ा था. आपने बात वही की है, ठीक है. टॉपिक ये था कि भी अमीर अमीर बन रहे हैं, गरीब गरीब बन रहे हैं, मतलब रिच आर गेटिंग रिचर, पुअर आर गेटिंग पुअरर. तो इसकी क्या वजह होती है? ठीक है, तो फिर मैंने ऑडियंस से पूछा भाई क्या वजह हो सकती है. तो किसी ने कहा माइंडसेट इसकी वजह है, ठीक है. कोई कहता है अपॉर्चुनिटीज इसकी वजह है. किसी ने कहा कि कैपिटलिज्म की वजह से ऐसा होता है, उनकी बात जिसको कहते हैं हिंदी में. तो ऐसे अलग अलग वजह रीजंस निकल के सामने आए. पर मैंने कहा चलिए ठीक है, अभी मैं मानता हूँ कि एटीट्यूड या माइंडसेट जिसको कहते हैं, ये एक बहुत बड़ा भाग इसका जरूर है, ठीक है. इसका एक बहुत अहम रोल है कि विदाउट माइंडसेट तो लाइफ में कुछ नहीं है. अगर आप पढ़ के रिजल्ट ला रहे हो स्कूल में, कॉलेज में, तो भी वो माइंडसेट होता है, तभी वो पॉसिबल है. ठीक है. अगर आप स्पोर्ट्स खेल के कुछ उसमें कर रहे हो तो माइंडसेट चाहिए. अगर बिजनेस में कुछ आगे जाके ग्रोथ कर रहे हो, प्रॉफिट कमा रहे हो, तो विदाउट माइंडसेट कैसे होगा? इट इज नॉट एक्चुअली पॉसिबल. पर मेरा सवाल ये है कि क्या हर बिजनेस में जो बिजनेस शुरू करता है उसके पास राइट माइंडसेट होता है? इनिशियली तो नहीं सर, इनिशियली नहीं होता, वो धीरे धीरे बिल्ड होता है. तो राइट माइंडसेट के साथ कोई मैदान में नहीं उतरता, वो प्रैक्टिस से बिल्ड होता है. रादर मैदान में उतरने के बाद माइंडसेट बिल्ड होता है. उतरने के बाद बिल्ड होता है माइंडसेट. जब वो मैदान में उतरता है, एंटरप्रेन्योर उतार चढ़ाव देखता है, तो उसका एक एटीट्यूड बिल्ड होता है, एक माइंडसेट उसका बिल्ड होता है, तब जाके फिर वो ग्रोथ की तरफ आगे चलता है. तो राइट माइंडसेट के साथ कोई मैदान में नहीं उतरता. तो नेटवर्क मार्केटिंग की बात आती है ना, तो सेम नहीं सोचते कि मैदान में उतरने के बाद उतार चढ़ाव देखेंगे तो एटीट्यूड बिल्ड होगा. तब ये नहीं सोचता कोई, तब ये सोचता है पहले ही कि माइंडसेट तो नहीं है अपना. फिर ये माइंडसेट ये नहीं बोलेगा आदमी, ही विल नॉट से मेरा माइंडसेट नहीं है, वो ये नहीं बोलेगा. मैं सीरियसली बता रहा हूँ, आप शायद वो ये बोलेगा दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी. ये भी बहुत कम लोग बोलेंगे. वो अपने आप को बोल देगा, वो आपको नहीं बोलेगा. वो मुझे नहीं बोलेगा, वो अपने आप को बोलेगा ये. पर वो क्या बोलेगा पता है? this is typical, I tell you. This is why rich are getting richer, poor are getting poorer. When rich come across an opportunity, they grab it. Correct. When poor come across an opportunity, वो बोलेगा ये स्कैम है. स्कैम है. Very true. मैं मजाक नहीं करता हूँ. I am very serious when I say this. Very true, sir. ये स्कैम है because ये उसका एटीट्यूड है. He is in a state of denial. Right, very true, sir. He's in a state of denial. क्यों? क्योंकि उसको अंदर से पता है ना मेरे बस का नहीं है, तो ये नहीं बोलेगा मेरे बस, वो बोलेगा ये स्कैम है. It's not about network marketing, it's about any damn thing. Correct. वो ये बोलेगा, वो ये कभी नहीं बोलेगा No one is going to accept बस मेरे बस का नहीं है, I'm sorry. वो ये नहीं बोलेगा कि I can build my attitude, मेरे बस का मैं इसको बना सकता हूँ. नहीं, वो अपने हाथ झटक देगा, स्कैम है. क्यों? क्योंकि वो एटीट्यूड ही नहीं है. एटीट्यूड ही नहीं है ना कि अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर लूं. सी देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कॉमन मैन. ये बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है. मतलब मैं जब बात करता हूँ ना, मेरे को ऐसे विचार आते हैं
जो मैंने किसी किताब में नहीं मिलेंगे, ठीक है। एक होता है जब अपॉर्चुनिटी देखे ना तो बोलता है दिस इज अ स्कैम, ओके दूसरा होता है अपॉर्चुनिटी देखे फिर बोलेगा मेरे बस का नहीं है, ओके और तीसरा होता है ना जो बोलता है मेरे बस का नहीं है पर कोशिश तो की जा सकती है। ओके ग्रेट ठीक है। ये जो आदमी होता है ना जो कहता है यार मेरे बस का नहीं है लेकिन कोशिश की जा सकती है, वो मैदान में उतरता है। बाकी जो पहले दो टाइप है ना वो मैदान में नहीं उतरते, और ये जो मेरे बस का है कोशिश की जा सकती है वो मैदान में उतरेगा। एंड ही विल ट्राई, है ना, उतार चढ़ाव देखेगा, एटीट्यूड बनेगा फिर वो ग्रोथ की तरफ जाएगा। ये फेज होते हैं ना, ये जो भी कॉमन मैन ये 3 फेज को क्रॉस करके आगे निकलता है ना, ही कैन डू वंडर्स इन नेटवर्क मार्केटिंग। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग वो इंडस्ट्री है जो सिस्टम देती है काम करने की। मैं जब एंटरप्रेन्योर्स के साथ बात करता हूँ ना तो आई टेल देम समथिंग वेरी सिंपल। मैं उनको पूछता हूँ अच्छा आपके क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं मेरे को बताइए। यू स्टार्ट टेलिंग मी ऑल द प्रॉब्लम्स दैट यू हैव, तो दे स्टार्ट टेलिंग मी ऑल देयर प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो एक होता है टाइम मैनेजमेंट, ठीक है, एक होता है टेकिंग थिंग्स फर्स्ट, टेकिंग इनिशिएटिव, इस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं। ठीक है, दूसरे तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं टीम को डेवलप करना, टीम को मोटिवेट करना। ठीक है, रिक्रूट करना भी प्रॉब्लम है और उसको रिटेन करना भी प्रॉब्लम है। ठीक है, ये प्रॉब्लम। फिर और दूसरे प्रॉब्लम होते हैं उसके मार्केटिंग, उसके स्ट्रेटेजीज या उसके सेल्स को कैसे बढ़ाना। तो अभी ये जितने मैंने प्रॉब्लम बताए ये 3 तरह के होते हैं, 3 टाइप्स, 3 कैटेगरीज ऑफ प्रॉब्लम्स। ठीक है, कैटेगरी 1 प्रॉब्लम जो है ना, जो शुरुआत में बताया ना हमने कि वो इनिशिएटिव नहीं आता है, वो डिसीजन एग्जीक्यूशन में नहीं आता है, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा है, ये कैटेगरी 1 प्रॉब्लम है। कैटेगरी 1 प्रॉब्लम होता है दिस प्रॉब्लम इज कॉल्ड लीडिंग योरसेल्फ, वो खुद को लीड नहीं कर पाता है। करेक्ट। दूसरा प्रॉब्लम जो टीम की बात है, रिक्रूट करने की, रिटेन करने की, मोटिवेट करने की, ठीक है, दैट इज द सेकंड प्रॉब्लम, दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ लीडिंग द टीम, वो टीम को लीड नहीं कर पा रहा है। तीसरी जो बात हुई ना, जब तीसरा प्रॉब्लम था जो कहता है कि भाई स्ट्रेटेजीज या सेल्स नहीं बढ़ रहा है या इस तरह की जो बात करता है, तो दिस इज कॉल्ड द प्रॉब्लम ऑफ लीडिंग द बिजनेस। थ्री कैटेगरीज ऑफ प्रॉब्लम, लीडिंग सेल्फ, लीडिंग टीम और लीडिंग बिजनेस। मजे की बात क्या पता है, नेटवर्क मार्केटिंग वो जगह है जहाँ तीनों प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन है। वाओ। ठीक है, जो अभी ये देखने के लिए एक नजरिया चाहिए। करेक्ट। तीनों प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन इस जगह पर है जिसको कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। क्योंकि आपको एक सपोर्ट मिलता है, एक कंपनी का सपोर्ट होता है, एक पूरी टीम जो बनती है टीम का सपोर्ट होता है। तो उस सपोर्ट में आदमी लीडिंग टीम, लीडिंग बिजनेस, लीडिंग सेल्स तीनों सीख जाता है। बाकी जब आदमी उसी चीज को अपने बिजनेस में करने की कोशिश करता है ना, तो कोई सपोर्ट नहीं है, उसको खुद करना है। तो खुद अपने आप से 3 में से एक भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाता और ये लाइफ कट जाती है। पर सपने वहीं रहते हैं। इवेंचुअली दे कॉम्प्रोमाइज, वो अपने सपनों के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? क्योंकि पैसा नहीं आ रहा है ना, अब दे डोंट हैव एन ऑप्शन। Very true, sir. And you getting my point? Are you getting my point? Yes, sir. Yes, sir. So it is about these 3 aspects. जो बिजनेस में लोग नहीं कर पाते, पर नेटवर्क मार्केटिंग में जो आगे उतार चढ़ाव के साथ में बहते हुए एटीट्यूड बिल्ड करते हैं ना, उनके तीनों प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाते हैं। Because of the structure, because of support, because of the team. So that is why I firmly believe कि नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए और सभी ने करना चाहिए। नो मैटर, सी इट्स नॉट अबाउट पीपल, जैसे आपने कहा ना कि चलो 15,000 की नौकरी ये करके देख लेते हैं। इट्स नॉट 15,000 की नौकरी ये करके देख लेते हैं। इसलिए अगर आपकी 1 लाख की नौकरी है फाइन, क्योंकि 1 लाख की नौकरी से आपके सपने पूरे हो जा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल, क्या 1 लाख की नौकरी के साथ नौकरी होने है तो क्या आप, अरे आई नो ऑफ सो मेनी पीपल, अभी जैसे मेरा अकाउंट है, लाइक आई हैव अ प्रीमियम अकाउंट इन द बैंक, आई हैव अ रिलेशनशिप मैनेजर, तो मेरे को घर में सर्विस मिलती है, जरूरत होती है तो घर पे आ जाते हैं, मेरे को कहीं जाना नहीं होता है। ठीक है, तो अब ये इसलिए है कि
मेरा एक अकाउंट का जो जो मेरा जो ट्रैक रिकॉर्ड है, जो मेरी क्रेडिबिलिटी है और मैं टर्नओवर करता हूँ बैंक के अंदर, तो मेरे को ये सब मिलता है। ठीक है, और मेरी जो एक ओडी लिमिट है, इट्स इन मल्टीपल ऑफ लैक्स, राइट, तो उस वजह से मेरे को ये सब मिलता है। ठीक है, अब आपके पास 1 लाख की जॉब है या आपके पास ये सारी चीज है, चलिए मान लेते हो कि आपके पास टाइम है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट, टाइम इज मनी, बट टाइम नहीं है। ये पैसा एंजॉय करने को तो वक्त ही नहीं है आपके पास। तो नेटवर्क मार्केटिंग एक वो जगह है जहाँ पर एटीट्यूड बिल्ड होता है, जहाँ पर बिजनेस बिल्ड होता है, जहाँ पर आपके पास वक्त होता है उस पैसे को एंजॉय करने का। अगर हर चीज एक जगह पे मिल रही है तो कोशिश तो करनी ही चाहिए, मैं ये मानता हूँ। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपने जो 3 चीजें बताई कि एक तो एटीट्यूड का सवाल है, दूसरा कि सब कुछ अगर मिल रहा है तो वी हैव टू ट्राई, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट इफ यू वांट टू एंजॉय योर टाइम, अगर आपके पास पैसा है और टाइम नहीं है तो वो पैसा भी आप क्या कर पाओगे, उसका आप क्या मजा ले पाओगे लाइफ में। आप उसको अपनी फैमिली को अगर एंटरटेन नहीं कर पा रहे हो, या फिर क्वालिटी टाइम नहीं बिता पा रहे हो, या फिर हमेशा इतने स्ट्रेस में रहते हो कि आपने जो कमाया हुआ पैसा उसका क्या होगा आपको वही नहीं पता है। और लाख रुपए की जो आपने बात की कि यस, अगर लाख रुपए इनकम अर्न कर रहे हो, जॉब से कर रहे हो, तो भी क्या सब कुछ ठीक है? There is always a big question. People have fear. People have lot of inhibitions के 1 लाख रुपए से 1.5 लाख रुपए की इनकम बनेगी या नहीं बनेगी, और कहीं नौकरी छूट गई तो। कोविड में हमने सबने देख लिया कि किसी ना किसी ने अपने परिवार के किसी ना किसी सदस्य को गंवाया। कभी कहीं ना कहीं कोई फैमिलीज में कोई ब्रेड अर्नर जो मेन व्यक्ति था वो ही नहीं है आज। तो ये सारी सिचुएशन जो आ रही है जिसका कंट्रोल हमारे पास नहीं है, जिसके बारे में हम प्रिडिक्ट भी नहीं कर पाते, लेकिन हमारे साथ चीजें हो जाती है। देयर आर सो मेनी फैमिलीज जहाँ पे बिकॉज हस्बैंड इज नॉट देयर, वाइफ हैज टू रीस्टार्ट एवरीथिंग एंड मे बी स्टार्ट थिंकिंग टू गो आउट एंड लर्न सम स्किल एंड डू समथिंग। इससे तो अच्छा ये है, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, कि आप पहले से क्यों ना सीखो। और सर इस इंडस्ट्री में एक और बात भी है, उसके बारे में भी मैं चाहूंगी आप शेयर करें। क्यों अगर इस इंडस्ट्री में अगर कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं है, राइट, तो इस बिजनेस को कैसे देखें? क्योंकि हमारी फितरत ये होती है जहां हमारा बहुत पैसा लगा हुआ होता है ना, तो हमारा अटेंशन वही जाता है। अरे मैंने 20 लाख रुपए किसी प्रोजेक्ट पे लगाए हैं, तो अगर शटर खोलने की बात आएगी और मेरा सर्वेंट अवेलेबल नहीं होगा तो मैं खुद खोलने के लिए तैयार हो जाती हूँ कि भैया मेरा ऑफिस है, मेरा काम है, मेरा बिजनेस है। वही चीज नेटवर्क मार्केटिंग में आपको उतने ही लाखों रुपए की कमाने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, लेकिन जब बात आती है क्योंकि बिना इन्वेस्टमेंट का बिजनेस है, वहाँ वो माइंडसेट नहीं होता है और इनिशियल स्टेज पे ऐसा लगता है कहाँ पैसे लगाए, कौन सा हमें कोई किसी को जवाब देना है। तो सर क्या ऐसी टेक्निक हमें आप बता सकते हैं कि बिजनेस भी करें, बिजनेस माइंडसेट से करें और लाखों रुपए लगाए बिना लाखों रुपए कमाए? तो उसके लिए आप हमें क्या शेयर करना चाहिए? अभी जो बात हो रही है ना, वो ये बात है कि इन्वेस्टमेंट नहीं है। राइट सर, ठीक है। अगर इन्वेस्टमेंट नहीं है तो इसमें समस्या बहुत, अगर देखा जाए तो बहुत बड़ी है, और देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। ये तो नजरिए की बात है। ठीक है, तो दृष्टि स्वरूप अवस्था, इसके बाहर तो मेरे हिसाब से इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। तो, लेकिन एक बात तो पक्की है जो मैं मानता हूँ कि जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग, मैंने देखा है जितना, मैंने समझा है जितना, मैं करीब 18 साल से इंडस्ट्री के साथ एसोसिएटेड हूँ एज अ ट्रेनर, एज अ कंसल्टेंट। कई सारी कंपनियों के ट्रेनिंग्स डिज़ाइन किए हैं और कई सारी कंपनीज के कंपनसेशन प्लान डिज़ाइन किए एज अ कंसल्टेंट, लॉन्च करी है कंपनी एज अ कंसल्टेंट। तो इंडस्ट्री को तो मैं 18 साल से जानता हूँ। इसके अंदर जो लोग जुड़ते हैं उनकी सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि जो एंट्री पॉइंट होता है ना, देयर इज नो बैरियर टू एंट्री। बैरियर टू एंट्री लोग समझते नहीं है। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ बैरियर टू एंट्री कि अगर मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और मेरे पास एक कंप्यूटर, एक लैपटॉप है जिसके अंदर तो सॉफ्टवेयर वगैरह है जिससे कि मैं कुछ भी ऐप या सॉफ्टवेयर बना सकता हूँ,
तो बैरियर टू एंट्री मेरा 0 है। मैं एक कंपनी खोल दूंगा जो कि सॉफ्टवेयर और ऐप बनाती है, तो कोई बैरियर नहीं है। विदाउट अ सिंगल पेनी ऑफ इन्वेस्टमेंट मैं कंपनी खोल दूंगा। सिर्फ मेरे को एक कंपनी का नाम रजिस्टर कराना है और शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट नंबर ले लेना है, हो गया। तो देयर इज नो एंट्री टू बैरियर। उसी तरह नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में देयर इज नो एंट्री टू बैरियर। क्यों? इन्वेस्टमेंट नहीं है ना। आप एंटर कर जाओ कंपनी के अंदर और आप जो है डिस्ट्रीब्यूटर बन गए। देयर इज नो बैरियर टू एंट्री। और जब बैरियर टू एंट्री नहीं होता है ना, तो ये बात समझना, देयर इज नो बैरियर टू एग्जिट एज वेल। वेरी ट्रू, एग्री। बिजनेस में अगर 5, 10, 15, 20 लाख लगाया है जी सर, तो मतलब बैरियर, एंट्री में बैरियर पॉइंट है। अब एग्जिट पॉइंट जब आता है ना, तो बैरियर है, क्योंकि आप पैसा खो के बाहर जाने वाले हो। राइट। तो आदमी आखिरी सांस तक लड़ता है। वेरी ट्रू सर, बहुत सही बात बताई आपने। देयर इज नो बैरियर टू एग्जिट। करेक्ट। आप बाहर निकल जाओगे तो कोई नुकसान नहीं है। पर सवाल ये है, क्या सचमुच कोई नुकसान नहीं है? ये सोचने वाली बात है। ये सवाल है मेरा, क्या सचमुच कोई नुकसान नहीं है कि आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन ऐसा है जिसमें आप हर साल के 2 वर्ल्ड टूर ले सकते हो? कितना बड़ा नुकसान। क्या आपके पास कोई ऐसा दूसरा ऑप्शन है कि जिससे आप अपने सपने, अपने ड्रीम हाउस में जा सकते हो? इतना बड़ा नुकसान। देयर इज अ ह्यूज बैरियर टू एग्जिट। पर ये बैरियर जो है ना, दिखता नहीं है लोगों को। राइट। ये बैरियर जिसको दिख जाएगा वो कभी छोड़ के नहीं जाता। वेरी ट्रू। ये पक्की बात है। सो व्हाट इज, जो मैं समझता हूँ इस इंडस्ट्री को, कि इंडस्ट्री में आने के बाद जो है ना, मैं मानता हूँ सभी लोगों, सब सपने सबके पास है। समझना इस बात को, इस दुनिया में सब कोई नहीं है। मतलब मुझे 11 साल हो गए परफॉर्मेंस कोचिंग करते हुए, और मैं 11 साल से सबको एक सवाल करता हूँ, डू यू हैव अ ड्रीम? करेक्ट। क्या आपके सपने हैं? तो 11 साल में मुझे एक भी आदमी नहीं मिला जिसने ये कहा कि आई डोंट हैव अ ड्रीम। ऐसे बहुत सारे मिले जिन्होंने कहा यस आई हैड अ ड्रीम। हाँ, कभी था सपना, अब कॉम्प्रोमाइज कर लिए। तो इट्स फाइन यार, होता है। क्योंकि जब आप ऐसी स्थिति में, ऐसी सिचुएशन में आ जाते हो कि अब आपका परसेप्शन बनता है कि इट इज नॉट पॉसिबल, तो आप अपने ड्रीम्स को जो है ना कॉम्प्रोमाइज कर लोगे। तो ये होता है, सबके साथ होता है। पर ऐसा एक भी आदमी नहीं मिला जिसने ये कहा कि मेरे सपने नहीं थे। सपने सबके होते हैं। सपना देखना ये मन का फंक्शन है। इट इज द फंक्शन ऑफ द माइंड। तो इस दुनिया में कोई आदमी ऐसा नहीं जिसका सपना नहीं है। समस्या, सपना देखना समस्या नहीं है। समस्या है उस सपने को साकार करना, उस सपने को जीना। तो उस सपने को जीने के लिए जो है ना, जब मैं लोगों को सवाल करता हूँ ना, डू यू हैव अ ड्रीम, तो मेरे को जो बंदा कहता है हाँ आई हैव अ ड्रीम, तो मैं उसको कहता हूँ आई कैन हेल्प यू एक्जीक्यूट द ड्रीम। वेरी ट्रू। ठीक है। तो मेरा, आई मीन इवन इन माय प्रोफेशन, मेरा क्लाइंट वही होता है जिसके पास सपना है। जिसका सपना नहीं है वो मेरा क्लाइंट भी नहीं हो सकता। राइट। तो मेरी बात समझ ही नहीं सकता जब मैं कहता हूँ एक्जीक्यूटिंग द ड्रीम। अब वो तो 15, 20, 25 साल से अटका हुआ है कि बस कंप्रोमाइज कर चुका है, बस ड्रीम तो अचीव नहीं हो सकता है। एक पागल आदमी आके बोलता है आई कैन हेल्प यू एक्जीक्यूट द ड्रीम, हाउ इज दैट पॉसिबल? तो ये सेम रूल अप्लाइज इन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। राइट सर। ठीक है, डू यू हैव अ ड्रीम? अगर आपके पास सपना है और आप में वो क्षमता है कि आप उस सपने को पकड़ के रखो 3 साल तक। 3 साल तक। 3 साल। So mostly it says that every business needs 1000 days. 1000 days. 3 साल। So it is 3 years, correct? Yes. ठीक है। अगर आप उस सपने को पकड़ के रख सकते हो, if you can hold on to the dreams for 3 years. 3 years. 3 years. Wonders can happen. Actually. तब समस्या ये आती है, वो बैरियर जो एग्जिट नहीं होता है। Right. और जब उसको 2-3 जो है ठोकरें लगती है, अब ठोकरें तो लगेगी ना। एक नई इंडस्ट्री है, अब बंदे ने कोई और बिजनेस किया है, उस बिजनेस में तो महारत ही है। महारत हासिल कर ली, 10, 15, 20 साल से एक बिजनेस कर रहा है आदमी, एक जॉब कर रहा है, तो उसमें तो उसका महारत है, स्किल डेवलप हो गया, उसकी कंसिस्टेंसी आ गई है। पर अब जब नेटवर्क मार्केटिंग में आता है तो इट्स ए न्यू बॉल।
बिल्कुल अलग काम करना है, बिल्कुल अलग एटीट्यूड चाहिए, बिल्कुल अलग तरीका चाहिए। अब वो तरीका तो उसके पास नहीं है। अब समस्या दूसरी यहाँ आती है कि वो सीखने को तैयार नहीं। वो ये सोचता है मुझे तो सब आता है, मैं 15 साल से काम करता हूँ। करेक्ट। एंड समटाइम्स आपने 15 साल काम किया है तो आप किसी की सुनते भी नहीं है। दैट्स ट्रू। वो वो ग्रास रूट लेवल पे अगर नहीं आएगा कोई भी आदमी, वो बहुत जरूरी है। सर एक एक सवाल मेरे मन में बहुत आता है जब मैं आपसे बात करती हूँ फोन पे भी, जब कुछ कभी भी कोई किसी इश्यू को लेकर इंटरेक्शन होता है, कुछ मुझे अपनी हेल्थ को लेकर आपसे कुछ बात करनी होती है, हाउ यू कैन, व्हाट ड्राइव्स यू, आपको ड्राइव क्या करता है, और हाउ यू कैन बी सो चाइल्ड लाइक। बहुत कम लोग इस पृथ्वी पे ऐसे हैं जो बच्चे जैसे रह सकते हैं, जो एकदम माइल्ड रह सकते हैं। उनको एक ही कंसिस्टेंट एनवायरनमेंट में आप जब मिलो तो भी वो ऐसे होते हैं, जब आप उनसे बात ना भी करो तो भी आपको पता ही ये बंदा ऐसे ही है। तो ऐसे आप बच्चों जैसे, मैं ऐसा नहीं मानती हूँ कि आपकी लाइफ में उतार चढ़ाव नहीं आए होंगे, एंड बहुत सारी उलझने नहीं होंगी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। डेफिनेटली लाइफ मस्ट बी अ वेरी डिफिकल्ट एंड टॉप्सी टर्वी जर्नी, एवरीवन हैज अ डिफरेंट स्टोरी। तो ऐसे कैसे, एंड व्हाट ड्राइव्स यू, आपको नेटवर्क मार्केटिंग में ड्राइव क्या करता है? आपको कौन सी ऐसी इमोशन आपकी ड्राइव करती है इस इंडस्ट्री को लोगों के साथ शेयर करने के लिए? और आप बच्चे कैसे रह सकते हो, ये मेरे 2 सवाल है। ये तो बड़ा मुश्किल सवाल है कि बच्चे की तरह कैसे रहते हैं। बेसिक ये है ना कि मैं अगर अपनी पर्सनल बात करूं, बहुत सारे लोग जब मैं ये बात करता हूं तो मुझसे नाराज हो जाते हैं, पर अब जब आपने सवाल पूछ लिया तो मैं हमेशा सीधी बात करता हूं, मेरी आदत है। जी सर। ठीक है। पर बहुत सारे लोग जो है ना, उनको लगता है कि मैं बहुत बड़ा तोप हूं। अच्छा। ठीक है, उनको ऐसा लगता है। जब आदमी अपने आप को तोप समझता है, हाँ, तो बच्चा नहीं रह सकता। बच्चा नहीं रह सकता, नहीं रह सकता। इट इज नॉट पॉसिबल। इट इज नॉट पॉसिबल। जो आप देख लेना अपने आसपास भी, यहीं पर भी ये प्रिंसिपल अप्लाई करता है। जब आदमी अपने आप को तोप समझता है, वो बड़ी गंभीर बातें करेगा, सीरियस बातें करेगा एकदम। ठीक है, वो बहुत ज्यादा नॉलेजेबल बातें करेगा, राइट, जिसको नॉलेजेबल कही जाती है। ठीक है, मैं नॉलेजेबल बातें करता हूँ, पर मैं प्रैक्टिकल बातें करता हूँ ज्यादा। जी सर। जैसे अभी आपने सेशन शुरू होने से बोल दिया कि हम हिंदुस्तान की ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस को कैप्चर कर रहे हैं, तो आज का सेशन हम हिंदी में करेंगे। हिंदी में करेंगे। राइट, यस ट्रू। ट्रू। जब आदमी तो बन जाता है ना, तो बच्चा नहीं रह सकता। इट इज नॉट पॉसिबल। वेरी ट्रू। इट इज जस्ट नॉट पॉसिबल। ठीक है। और अभी जो सुनामी आई थी, जी सर, ठीक है, गुजरात में, तो हमारे गुजरात में करोड़ों 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 रुपए का नुकसान हुआ, और वो खरबों का नुकसान हुआ। और कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पर एक पेड़ नहीं बचा, एक पेड़ नहीं बचा। जड़ से पेड़ उखड़ गए, बड़े बड़े पेड़ जड़ से उखड़ गए। ये उखड़ के क्योंकि सारे तोप थे। आप जितने खेत लगे हुए ना, आप देखो खेत, वहां से कुछ नहीं उखड़ा, वो बैंड हो गए। बिल्कुल सही बात है। तोप नहीं है, ये बच्चे हैं। सही बात है सर। ठीक है, तोप मत रहो लाइफ में। लाइफ में अगर तोप नहीं रहोगे, अगर ये रहेगा कि बस मैं ऐसा हूँ यार, तो लाइफ। और मैं मानता हूँ कि लाइफ में कुछ चीजें बहुत जरूरी है, और ये चीजें हर इंसान की लाइफ में होनी चाहिए। एक है स्पोर्ट खेलना, दूसरा है गाना गाना, तीसरा है डांस करना, और चौथा है कहानी सुनाना। कहानी सुनाना और सुनना, दोनों। ये 4 चीजें लाइफ में रोज होनी चाहिए। क्या बात है। So I think sir, it sounds very romantic. Honestly, sounds very romantic. गाना सुनना, स्टोरीज कहना, स्टोरीज सुनना, स्पोर्ट्स एक्टिविटी में पार्टिसिपेट होना, मे बी एनीथिंग व्हाट यू लाइक। इट इज, सी, आई प्ले स्पोर्ट्स, मैं टेबल टेनिस खेलता हूँ। और जब भी मौका मिलता है जी, तो क्योंकि वक्त की वजह से मौका नहीं मिलता, हर बार नहीं मिल पाता है, पर जब भी मौका मिलता है, जो टेबल टेनिस फेडरेशन जो टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज करती है, वेटरन्स टेबल टेनिस, लाइक
मैं 40 प्लस एज ग्रुप खेला करता था लास्ट ईयर, उससे पहले। अब 50 हो गया, तो अब अगले साल से 50 प्लस एज ग्रुप खेला करूंगा। जब भी मौका मिलता है, आई ट्रैवल एंड आई गो एंड आई पार्टिसिपेट इन दोस टूर्नामेंट्स एज वेल, जो कि टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइज करती है, गुजरात टेबल टेनिस फेडरेशन ऑर्गेनाइज करता है। मैं वो टूर्नामेंट्स भी जाके खेलता हूँ। जब मेरा शेड्यूल में, अगर मैं उसको सही शेड्यूल कर पाता हूँ और मौका लगता है, तो आई ऑलवेज मेक अ पॉइंट एंड आई गो एंड पार्टिसिपेट, आई प्ले दो टूर्नामेंट्स। ठीक है, मैं रोज टेबल टेनिस खेलता हूँ। मेरा रोज का करीब 25-30 मिनट का एक्सरसाइज रूटीन होता है। आई प्रैक्टिस शिगोंग, 7 साल हो गए। ये सब रोज का रूटीन होता है। मैं रोज गाने गाता हूँ। ठीक है, मैं रोज That is why आप बच्चे रह पाते हो। मैं रोज कहानी सुनाता हूँ किसी ना किसी को। ठीक है, I mean my friends and like people into storytelling business, जब उनके साथ मैं बैठता हूँ तो बोले यार you are a very good storyteller, हमारे साथ आ जाओ। Correct. सर, मैं ये इसके साथ मैंने एक आपको और सवाल पूछा कि what drives you in network marketing? आपको क्या ड्राइव करता है? आपकी कौन सी इमोशन ऐसी है, क्या ऐसा पैशन है? आप क्या सोचते हैं? मतलब ऐसी तो कोई ड्राइविंग फोर्स होगी जिसने आपको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग के साथ कनेक्टेड रखा है। और दूसरा एक और सवाल साथ ही साथ में, हाउ डू यू सी द फ्यूचर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग? ठीक है, तो सी मेरी जो ड्राइविंग फोर्स की बात आप करते हैं ना, तो मेरा ड्राइविंग फोर्स बहुत सिंपल है। मैं जो चार्ज करता हूँ फॉर माई कोचिंग एंड माई ट्रेनिंग, ये मतलब आम आदमी सोच ही नहीं सकता कि इस बंदे के पास से हम कुछ सीख लेंगे। अच्छा, उस रेंज में होता है। ठीक है, तो नेटवर्क मार्केटिंग एक वो जगह है जहाँ पर मैं इसी वजह से एसोसिएटेड हूँ इतने सालों से, कि यहाँ पर मुझे एक आम आदमी मिलता है जो कि मुझे जो कुछ भी आता है उसमें से कुछ सीख पाए। राइट। ठीक है, और मैं उस आम आदमी की जिंदगी में कुछ वैल्यू ऐड कर सकूँ। वेरी ट्रू। So that is the only one thing which actually keeps me, going, rather which has kept me associated with this industry for many years. बाकी तो काम है अपना, अच्छा है, बिजनेस है, कोचिंग है, ट्रेनिंग है, enjoying life, बढ़िया जिंदगी चल रही है। ठीक है, तो I never talk of my businesses. मैं कहीं भी किसी के साथ अपने बिजनेस शेयर भी नहीं करता। कोई क्या करता है, अरे ठीक है छोड़ो ना यार, वो तो चलता है। That makes you बच्चा, you know. ठीक है, तो वो तो होता है। See, there are 2 businesses जिसमें मैंने अपनी ऑफिस 3 साल से 4 साल से नहीं देखी है। I have not been to the office 4 years. काम होता है, सॉफ्टवेयर इन प्लेस, पीपल इन प्लेस, रिपोर्टिंग होती है। मैं सिर्फ कागज का टुकड़ा पढ़ता हूँ। तो अभी ऐप पे पढ़ लेते हैं या इस वेबसाइट पे देख लेते हैं। मैं सिर्फ फिगर्स, डेटा देखता हूँ और कुछ नहीं करता हूँ। आई हैव नॉट बीन टू द ऑफिस फॉर 4 years. आई जस्ट एंजॉय माय लाइफ। मेरा पूरा टाइम जाता है कोचिंग में। कोचिंग में मेरा जितना टाइम जाता है उससे ज़्यादा टाइम वो 4 चीज़ों में जाता है जो मैंने बताया। ये 4 चीज़ें ज़रूरी है करना। उसमें जितना टाइम मैं कोचिंग में देता हूँ उससे ज़्यादा टाइम मेरा उसमें जाता है। दिस टाइम इज़ फॉर माई सेल्फ। तो मैं जितना टाइम कोचिंग को देता हूँ उससे ज़्यादा टाइम मैं अपने आप को देता हूँ। That's how I live. Wow, amazing. So the driving force for Mithilesh Chudgar is, I think, this is what you said, that you want to add value in someone's life. Yeah, that is true. And direct selling has a platform. It's an opportunity to connect with a common man. वो common man जो हम कार्टून में देखते हैं, the cartoon of R.K. Lakshman, उसमें हम देखते हैं common man who needs some support, a man who is standing in the last row, a man who has some dreams and aspirations. शायद उसके पास कोई mentor नहीं है, कोई कोच नहीं है, कोई शायद प्लेटफॉर्म नहीं है, या तो फिर कोई प्रोसेस नहीं है कि उसको सिखाया जाए कि भैया रिच बनने के लिए ये रास्ता आपके पास है। आप पुअर रहना चाहते हो तो आपको कोई नहीं बदल सकता, लेकिन आप पैसे कमाना चाहते हो, अगर आप अपनी लाइफ को अपलिफ्ट करना चाहते हो, अपने ड्रीम्स को, एस्पिरेशंस को पूरे करना चाहते हो, सो देयर इज अ वे आउट कॉल्ड डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एंड नेटवर्क मार्केटिंग। एक और सवाल जो मैंने आपको पूछा सर, हाउ डू यू लुक एट दिस इंडस्ट्री, फ्यूचर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग?
अभी जो सेकंड लॉकडाउन हुआ था, सेकंड वेव, जी सर, ठीक है, फर्स्ट वेव में हमने देखा कि एक इंडस्ट्री ने बहुत ग्रो किया, दैट इज आईटी। ठीक है, मेरे जितने भी जान पहचान के लोग हैं, मेरे कुछ क्लाइंट्स भी आईटी में, उनका काम डबल हो गया, एक्चुअली डबल हो गया। स्पेशली जो लोग डिजिटल मार्केटिंग और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे वेबसाइट बना रहे हैं, ये डिजिटल प्लेटफॉर्म्स बना रहे हैं, ई कॉमर्स बना रहे हैं, उनका काम प्रैक्टिकली डबल हो गया, सब लोगों का जिनको मैं जानता हूँ। राइट, ठीक है। सेकेंड वेव में ये देखा कि भाई आईटी जो है ना, उसने डिप किया है। आईटी हैज एक्चुअली ड्रॉप डाउन इन द सेकेंड वेव। बिजनेस कम हुआ। ठीक है, मेरे जान पहचान वाले काफी लोगों ने कहा कि जो पुराने क्लाइंट्स, वो जो बजट देते थे डिजिटल मार्केटिंग का, उन्होंने बजट कम करके आधा कर दिया। राइट, तो आईटी डिप ना, ये बहुत लोग जानते नहीं हैं। राइट सर, आईटी एक्चुअली डिप इन द सेकेंड वेव। नॉट अ सिंगल इंडस्ट्री could maintain ग्रोथ, तो बहुत दूर है, could maintain नहीं हुआ कोई भी इंडस्ट्री। सारी इंडस्ट्रीज नीचे गई है, डाउनफॉल है हर इंडस्ट्री का। देयर इज ओनली वन इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग, जिसने ग्रो किया है। ठीक है, तो और लोगों को ये बात समझ में आने लगी है धीरे धीरे, इट इज लॉन्ग वे टू गो येट, पर धीरे धीरे लोगों को समझ आने लगी है। A big problem with people is you know, they just go by what they hear, they don't research. Very true. अपनी बुद्धि लगा के रिसर्च नहीं करते हैं कि किस तरह की कंपनी के साथ काम किया जाए। जो आया जो सुना कर लिया, दैट्स अ रॉन्ग अप्रोच। आप मार्केट को पता करें किस तरह की कंपनीज है, 2-4-5 कंपनियां देखें, कंपेयर करें, ठीक है, फिर सिलेक्ट करें, रादर देन जस्ट गोइंग बाय द फ्लो, कहीं भी चले गए। इवेंचुअली बस ये कहीं भी चले गए, इसको भेड़ चाल कहते हैं। गरीब क्यों है? क्योंकि वो भेड़ चाल में ही चलता है। भेड़ चाल को छोड़े, 2-4-5-10 कंपनियां देखें, लोगों से बात करें, जो कंपनी सही लगे, जो बंदा सही लगे, काम शुरू करें। ये भेड़ चाल को जब तक नहीं छोड़ेंगे, गरीब रहेगा। आई एम वेरी क्लियर एंड वेरी स्ट्रेट। शायद कुछ लोगों को मेरी बात बुरी लगे तो आई एम सो सॉरी। नहीं सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि आप जो कह रहे हैं इसमें आप सीधी बात कर रहे हैं और वो प्रैक्टिकल है और बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सिंपल सी बात है कि अगर हम बदलेंगे नहीं, हम वो चाल को चलना छोड़ेंगे नहीं, कुछ नया सीखेंगे नहीं, नई 2-4 कंपनियों को एक्सप्लोर नहीं करेंगे, पता कैसे चलेगा। और दूसरी और आपने बात बताई कि व्यक्ति को भी आप कंपनी को चूज कर रहे हैं, इसी तरह लीडर को चूज कीजिए, व्यक्ति को चूज कीजिए, किसके साथ आपको कनेक्ट होना है, क्या करना है आपको, आपका रोड मैप क्या है। देयर इज अ वे आउट, बट यस, हाफ इंफॉर्मेशन के साथ लोग सुनी सुनाई बातों पे यकीन कर लेते हैं, अपना रिसर्च नहीं करते हैं। जैसे आपने बताया, कहीं ऐसी कोई प्रैक्टिकल एनालिसिस होती नहीं है, और उसने बोला ठीक है तो कर लिया, उसने बोला ठीक नहीं है तो छोड़ दिया। ये सारी बातें एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है जी। सिर्फ 8-10 कंपनियां देखें, 4-5 कंपनियां देखें, 5-7 लीडर्स से बात करें ना, तो सब 5-7 कंपनियां देखने के बराबर होता है। तो जब लीडर से बात करते हैं तो कुछ तो समझ में आता है कि बस बंदा क्या है। ठीक है, वो बंदे में अगर कोई पैशन दिखता है, वो दिख जाता है। ठीक है ना, तो एटलीस्ट लोगों से बात तो करें। एनालिसिस चलो ठीक है, सबके बस का नहीं है, मैं समझता हूँ, पर आप 5 लोगों को मिलेंगे तो आपको एक गट फीलिंग तो आएगा, तो बस ये सही है। वो तो सबको आता है, वो गट फीलिंग, वो एक अंदर से एक आवाज आती है, ये सही है यार। तो अपनी दिल की सुनो, ये सही है यार। पर उसके लिए आप 5-7 लोगों को मिलो, उनसे बात करो, तो अंदर से एक आवाज आएगी, ये सही है बॉस, इसके साथ काम करना है। That is the only way I tell you. एनालिसिस से कुछ नहीं होता। सर, इसका मतलब है कि इंट्यूशन काम करता है, राइट? 100% काम करता है। आपका इंट्यूशन क्लियर होना चाहिए जब आप डिसीजन ले रहे हो कि ये सही है। फिर आप बहुत ज्यादा लॉजिकल मत बनो, बहुत ज्यादा
आसपास के लोगों से पूछ के अपने आप को स्पॉइल मत करो, इंट्यूटिवली अपने आप को पूछो कि मैं क्या ये सही है। That's all. सर आपने आज मतलब ये बोल के ना बहुत सिंपल कर दी इन चीजों को लोग, एक्चुअली आपको मैं ये भी शेयर करना चाहती हूँ कि ये बात बिल्कुल बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत एनालिसिस करते हैं और कहीं नहीं पहुंचते। इससे अच्छा है तो आपने जो बताया, दिल को पूछ लो ना, अपने इंट्यूशन से बात कर लो, अपने आप को पूछो ये सही है। अगर सही क्लिक हो जाता है तो यस, एवरीथिंग इज गोइंग टू वर्क। तो सर आप अपनी लाइफ के डिसीजन ऐसे ही लेते हो कि सही है, बस मैं ऐसे ही काम करता हूँ, ये सही है। कभी कभी सही होने के बाद फिर बैठ के मैं सोचता हूँ, ये अलग बात है, पर वो सही है पहले आता है, राइट, फिर उसके ऊपर सोचना बाद में आता है। ये मेरा हर डिसीजन ऐसे ही होता है, कोई भी हो, पर इट कम्स विद दैट सही है। वेरी ट्रू सर, इट्स फन। पर इसमें एक चीज नहीं आती जिसको कहते हैं डिसीजन पैरालिसिस। ये बहुत भारी शब्द है, डिसीजन पैरालिसिस। ओके, ठीक है। तो पैरालिसिस में क्या होता है, आदमी अटक जाता है ना, हिलता नहीं है, चल नहीं पाता है, कुछ नहीं, हाथ नहीं हिला पाता, पैर नहीं। तो डिसीजन पैरालिसिस ये होता है ना कि आदमी डिसीजन ही नहीं ले पाता है, पैर वो वहीं रुक जाता है। जैसे पैरालिसिस में रुक जाता है, हाथ नहीं हिलता, पैर नहीं हिलता, कुछ नहीं होता, बिल्कुल फिक्स हो गया, तो अब डिसीजन नहीं ले पाएगा। और कई बार डिसीजन लेने के बाद डिसीजन पैरालिसिस कंटिन्यू करता है, तो एग्जीक्यूशन में भी नहीं आएगा। राइट, बिल्कुल सही बात है। अपने आप को, अपने दिल को पूछना ना, अपने दिल की सुनो, आस्क योरसेल्फ, सही है अंदर से बिल्कुल, आई टेल यू 100% आवाज आएगी, हाँ सही है। पर आपको अपने आप को वक्त देना है, अपने साथ बैठना है। समस्या ये अपने आप के साथ कोई बैठता नहीं है। सिट विथ योरसेल्फ, अपने आप को थोड़ा वक्त तो दो। सी मेरे लिए अब इसमें एक अलग टॉपिक आता है। जब भागवत गीता में जब कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि भाई ये तुम्हारा धर्म है, युद्ध करो, ठीक है, तो अर्जुन ने पूछा भगवान से कि भगवान ये धर्म क्या होता है। तो भगवान ने बहुत सिंपल जवाब दिया, बहुत सिंपल, ठीक है। भगवान ने कहा कि धर्म यानी कि तुम्हारी ड्यूटी, जवाबदारी को पूरी करना, करेक्ट, दैट इज धर्म। अब इट इज नॉट अबाउट हिंदुइज्म और इस्लाम और क्रिश्चियनिटी, ठीक है, हम डिबेट में नहीं जाएंगे कोई भी, पर उन्होंने बहुत सिंपल शब्द में कहा अपनी जवाबदारी पूरी करना ये धर्म है। तो मैं इस फिलॉसफी के साथ इस फिलॉसफी को जीता हूँ, ठीक है। तो मेरा सबसे पहला धर्म यानी सबसे पहली जवाबदारी मैं खुद हूँ, और कोई नहीं। तो मैं अपने आप को सबसे ज्यादा टाइम देता हूँ, क्योंकि मेरी पहली जवाबदारी मैंने अभी कहा, मैं कोचिंग को जितना वक्त देता हूँ उससे ज्यादा वक्त अपने आप को देता हूँ। मैं इस फिलॉसफी को जीता हूँ, इसलिए मैं बच्चा हूँ, राइट सर, ठीक है। मैं अपने आप को सब ज्यादा टाइम इसलिए देता हूँ अपने प्रोफेशन से भी, क्योंकि मैं खुद अपना टाइम सबसे ज्यादा डिजर्व करता हूँ। माई फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज माई बॉडी एंड माई माइंड, उसके बाद दुनिया की कोई व्यक्ति आती है, ठीक है। उसके बाद पेरेंट्स, स्पाउस, चिल्ड्रन, सिबलिंग्स, सोसाइटी, कंट्री, वो सब के बाद आता है। आई फाइंड इट सो फनी, लोग एनजीओ चला रहे हैं, बहुत अच्छा है, बट व्हाट अबाउट योर फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी? उनको देखो एब्सोल्युटली अनफिट बोथ विद बॉडी एंड माइंड, तो क्या फायदा? बिल्कुल सही बात। योर फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज योर बॉडी एंड योर माइंड। सर एक और बात मैं आपको पूछना चाहती हूँ यहाँ पे सर, हैपनिंग चीजें जब हम कहते हैं कि इट हैपेंस, यू नो, इट इज हैपनिंग। तो नेटवर्क मार्केटिंग में भी जब कोई मतलब सिस्टम आप बनाने के लिए कुछ प्रोसेस कर रहे हो, तो इज इट पॉसिबल दैट इफ यू थिंक दैट यस एक्शन तो है ही, बट इट इज स्टिल हैपनिंग, यू नो, इट इज स्टिल हैपनिंग, तो इज इट पॉसिबल? ये होता है क्या? सी इट इज हैपनिंग। अभी ये मतलब आपने सवाल बहुत अच्छा पूछा है। जब मैं अपने क्लाइंट के साथ मेरा पहला सेशन होता है, राइट, इस ग्रोथ की बात होती है, तो मैं हर क्लाइंट को 2 ऑप्शन देता हूँ, क्योंकि आपके 2 ऑप्शन है। मैं 2 तरीके से काम करता हूँ। पहला तरीका, हम गोल सेट करेंगे, ओके, हम गोल सेट करेंगे एंड देन वी गो ऑल आउट, हम गोल अचीव करेंगे, राइट।
और दूसरा रास्ता, we believe that God is a better planner than us, and we'll do action. No, we allow things to happen. Wow, we allow things to happen. ये दूसरा रास्ता. Correct. You choose. मेरे को दोनों आते हैं. Okay. आप चूज करो कौन से रास्ते जाना है. I tell you, 11 साल में मुझे अभी तक सिर्फ 2 लोग मिले हैं जिन्होंने दूसरा रास्ता चुना. We allow things to happen. बाकी सारे लोग गोल सेट करेंगे, we go along. I am fine. उसमें भी रिजल्ट मिलता है, नहीं मिलता ऐसा नहीं है, पर इसमें रिजल्ट जो मिलता है ना वो बहुत अलग होता है. वो वैसा रिजल्ट है जो मुझे मिल रहा है. It happens. It is happening. It's happening. चीजें होती है. ठीक है, मैं करता हूँ, yes, एक्शन है, पर चीजें होती है. Because I believe God is a better planner. Absolutely, sir. Very good. और जब मेरे रास्ते में फेलियर आता है ना, फेलियर सबके रास्ते में आता है, तो I firmly believe कि भाई God does not want me to go on this path. मैं उसको फेलियर लेता ही नहीं. मुझे रोक के रखा है. मैं उसको फेलियर लेता ही नहीं हूँ. फेलियर आने के बाद God does not want me to go on this path because things are happening in my life. God wants me to go in the other direction because things happen. I don't get depressed after failures. Why? Because God does not want me to go there. I don't fail. God is not allowing me to go somewhere. ये समझना जरूरी है. That is where you are in a very different state of mind, where things happen. Yes, action तो आपको ही लेना है. सर, मैंने ये सवाल आपको ये इसलिए पूछा क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग इज अ गेम ऑफ माइंडसेट, राइट? Yes. और आपने जो बताया एक ही रास्ता है, या तो आप गोल सेट करिए या तो लेट अलाउ थिंग्स टू हैपन. Yes. बट कहीं ना कहीं वो इंट्यूटिवली हमारी ऊर्जा या फिर एनर्जी या फिर हमारी थॉट प्रोसेस वीक हो जाती है. वी आर कंट्रोलिंग थिंग्स, हमें लगता है हम कंट्रोल कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, मुझसे होता है तो ही होता है, नहीं होता तो नहीं होता, तो शायद हम उस एनर्जी को फ्लो नहीं होने देते. 100%. और पीपल फेल बिकॉज ऑफ दैट आल्सो, राइट? 100%. That is the prime reason people fail. Not network marketing, anywhere, everywhere. Okay. Whether it is sports, whether it is relationships, whether it is business, whether it is network marketing, that is the only one place people fail. शायद आपका कहना ये है कि people fail because when there is a need to use heart, people use their head, and when there is a need to use their head, people use their heart, and that is. I'll put it in other words. थोड़ा टेक्निकल जाऊंगा, तो मैं नॉर्मली नहीं जाता हूँ, पर अब बात ये चल रही है, तो ऐसी परफॉर्मेंस की बात करते हैं. तो परफॉर्मेंस जो होता है ना, आपकी फिटनेस डिसाइड करेगा आपका परफॉर्मेंस. अब मैं फिटनेस कहता हूँ ना, तो लोग एक ही दिशा में चले जाते हैं, पर मेरे लिए फिटनेस जो होता है ना, 4 डायमेंशन मॉडल है. फिजिकल फिटनेस लोग वहीं जाते हैं हमेशा. फिटनेस चलो डोले शोले बनाएंगे, फिट रहेंगे. पर फिजिकल फिटनेस तो सिर्फ एक डायमेंशन हो गया. उसके बाद एक आता है जिसको कहते हैं मेंटल फिटनेस, इमोशनल फिटनेस और स्पिरिचुअल फिटनेस. वेरी ट्रू सर. और वो इंसान जो इस चारों डायमेंशन में फिट है, हाई परफॉर्मर होता है. क्या बात है. लाइफ की हर एस्पेक्ट में. अब फिजिकल फिटनेस की जब बात करते हैं ना, तो फिजिकल फिटनेस रिक्वायरमेंट इज डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन योर जॉब प्रोफाइल. वेरी ट्रू. ठीक है, एक आईटी का बंदा पूरा दिन चेयर पे बैठा है तो उसका फिजिकल फिटनेस रिक्वायरमेंट अलग है. वेरी ट्रू. और एक एंटरप्रेन्योर जो बैठ के सोचता है, सिर्फ डिसीजन लेता है, उसका फिजिकल फिटनेस रिक्वायरमेंट अलग है. और एक स्पोर्ट्समैन जो स्पोर्ट्स खेलता है, एक बंदा टेबल टेनिस खेल रहा है, उसका फिजिकल फिटनेस रिक्वायरमेंट अलग है, और टेनिस खेल रहा है उसका रिक्वायरमेंट अलग है. जो स्प्रिंट दौड़ता है उसका फिजिकल फिटनेस रिक्वायरमेंट अलग है, तो मैराथन दौड़ता है उसका फिजिकल फिटनेस रिक्वायरमेंट अलग है. तो फिजिकल फिटनेस फ्रंट पे रिक्वायरमेंट अलग है. बाकी 3 फ्रंट, मेंटल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल फिटनेस, इट इज द सेम. आप कुछ भी कर लो, इट इज द सेम. आप कुछ भी कर लो, इट इज द सेम. ठीक है, तो यहाँ पर पीपल गो रॉन्ग. आई गिव यू अ वंडरफुल एग्जांपल. जब आपने, अब मुझे मजा क्या आती है पता है? जी सर. यू नो, आप मुझे जो सवाल पूछ रहे हो ना, दिस इज हैपनिंग. वाओ. राइट. हैपनिंग. ठीक है, ना आपने सोचा है ना मैंने सोचा है. इट इज हैपनिंग.
Why it is happening? Because we both have a common purpose. हम एक बहुत इंटरैक्टिव ऐसा सेशन देंगे लोगों को कि जिसमें लोग एंजॉय भी करेंगे और उनको नॉलेज भी मिलेगा। हम दोनों का पर्पस कॉमन है, ठीक है? वेरी ट्रू सर। इट इज हैपनिंग। एफर्ट्स नहीं करने पड़ रहे हैं, बोरियत नहीं महसूस हो रही है, जबरदस्ती से नहीं कर रहे हैं, इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि एक टास्क दिया गया है, कंप्लीट करो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आई थिंक the audience must know that it is at 12 o'clock at night and we are recording this, but ऐसा लग नहीं रहा, ऐसा लग रहा है कि in the morning with a fresh mindset we are just sitting and talking on all this. Ultimately बात ये है सर, आप जो बिल्कुल सही कह रहे हो कि चाहे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री हो, मतलब नेटवर्क मार्केटिंग में आपको एक्सेल करना हो, परफॉर्मेंस चाहिए, फिटनेस हर तरह की हमें चाहिए, और आपकी फिजिकल फिटनेस की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है ही नहीं है ज्यादा, डिपेंडिंग अपॉन योर प्रोफेशन। स्पोर्ट्स में तो डेफिनेटली ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे नहीं जरूरत है हमें। I'll give you a wonderful way of looking at things. जी सर। जब हम डिसीजन लेते हैं ना, हाँ। तो डिसीजन जो है ना, उसके दो पहलू होते हैं। एक होता है फोकस और दूसरा होता है स्टेट ऑफ माइंड। समझना बहुत आसान है। फोकस लॉन्ग टर्म होता है, मतलब नॉर्मली जब लोग कुछ भी गोल सेटिंग करते हैं या कुछ सोचते हैं कि मुझे कहीं पहुंचना है, तो लॉन्ग टर्म होता है हमेशा कि भाई 5 साल में या 7 साल में या 10 साल में मेरे को ये अचीव करना है। तो फोकस लॉन्ग टर्म होता है। तो फोकस आपके डिसीजन को असर करेगा, रोजमर्रा उसके डिसीजन को असर करेगा। और दूसरा होता है स्टेट ऑफ माइंड, विच इज नाउ, प्रेजेंट मोमेंट। तो एक लॉन्ग टर्म फोकस और एक राइट नाउ प्रेजेंट मोमेंट, स्टेट ऑफ माइंड, ये दो जो है ना फोर्सेस होते हैं जो आपके डिसीजन को डिटरमाइन करेगा। तो आपका मेंटल फिटनेस आपका फोकस डिसाइड करता है, और आपका इमोशनल फिटनेस आपका नाउ, स्टेट ऑफ माइंड, वो डिसाइड करेगा। अगर ये दोनों सही है तो डिसीजन सही आएगा। अब जब इसमें हम तीसरा चीज ऐड करते हैं जिसको कहते हैं स्पिरिचुअल फिटनेस, तो अब आपका मेंटल फिटनेस यानी फोकस सही है, इमोशनल फिटनेस यानी योर स्टेट ऑफ माइंड नाउ प्रेजेंट वो सही है, और तीसरा आप उसके अंदर इंट्यूशन को ऐड करते हो, तो दैट इज व्हेन यू कम टू द बेस्ट डिसीजन। इसलिए मैंने कहा कि यार अपने दिल को पूछ लो ना, 5 मिनट बैठो अपने साथ में, आस्क योरसेल्फ। वेरी ट्रू सर। अपने आप को अंदर से आवाज आएगी बहुत सही है, अंदर से आवाज आएगी सही नहीं है, छोड़ दो, अंदर से आवाज आएगी सही है, गो फॉर इट, ठीक है? दैट मेक्स ऑल द डिफरेंस इन लाइफ। प्रैक्टिकल है, बहुत सिंपल चीज है करने के लिए, इतना सा कर लो बस, लाइफ बदल जाएगी। मतलब ये चीजें मैं मतलब ऐसे नहीं कर रहा हूँ कि ज्ञान है, ये मैं रोज करता हूँ लोगों के साथ में, मैंने रोज देखता हूँ लोगों को ये करते हुए, और लोगों को रोज इसके मैं बेनिफिट्स मिलते हुए देखता हूँ। इतना सिंपल है यार, कर लो ना, सो सिंपल। Does it make sense? वैसे मैंने बहुत सारे टॉक शोज किए हैं अभी तक व्हाई नॉट नेटवर्क मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट पे, और बहुत सारे अलग अलग लीडर्स को, कोचेस को, इस इंडस्ट्री के लीडिंग नेटवर्कर्स को सुना है, लेकिन मुझे आपकी बात टच कर रही है, एक्चुअली दिल को टच कर रही है कि मतलब आस्क योरसेल्फ। अच्छा लग रहा है, मतलब अगर ऐसे आप अकेले हो, रात हो, लेटे हो, आप किसी इंडस्ट्री के बारे में या फिर अपने लाइफ के करियर के बारे में 2-5 साल का टाइम देना चाहते हो, तो दिल से पता चल जाता है एक्चुअली। बहुत ज्यादा लॉजिक लगाने से भी शायद आप मतलब इतने खुश नहीं हो पाओगे अगर आप बहुत ज्यादा लॉजिकल डिसीजन लेते हो, लेकिन अगर आप डिसीजन लेते हो और उस वक्त अंदर से खुश महसूस कर रहे हो, ऐसा लग रहा है यस लेट मी डू इट, यू नो, तो अपने आप वो चीजें आपको मतलब फिल करती है, वो हैपनिंग में आ जाती है। इस टॉपिक पे एक लास्ट बात मैं करूंगा। जी सर। लोग अटके हुए लॉजिक में, समझना ये इज वंडरफुल थिंग। लोग अटके हुए लॉजिक में, लोग लॉजिक लगाते हैं डिसीजन के पीछे, ठीक है? नाउ द फन इज, यू नो, जब लॉजिक में अटकते हैं ना तो हम मैजिक को मिस कर जाते हैं। बिल्कुल सही है सर, ठीक है? और मैजिक वहां पर है जब आप अपने जैसे आपने कहा रात को लेटे हो, अपने आप को पूछो यार 5 मिनट दो, जस्ट रिलैक्स इजी, अपने आप को पूछो अंदर से, ये मैजिक है। हम लॉजिक में मैजिक को मिस करते हैं। राइट। In every aspect of life, life is actually simple, it's easy. We complicate things by adding a lot of logic. आपने मुझे पूछा ना बच्चे कैसे हो? Right. I believe in magic. मैं लॉजिक बहुत यूज करता हूँ।
लाइफ इज ऑल अबाउट मैजिक। और अगर आप लाइफ को इस दृष्टिकोण से देखोगे ना, तो लाइफ में फेलियर नाम की कोई चीज नहीं है, बिकॉज दैट इज ऑल्सो मैजिक। God has made happen. You know, God has created in your life because God does not want you to go that way. God is a better planner. Very true. And God obviously is a better planner, but you should believe in magic for that. आपको लॉजिक छोड़ना पड़ेगा। सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है सर। सर यहाँ पे आपकी आई थिंक स्पिरिचुअल फिटनेस की बात हम महसूस कर पा रहे हैं कि गॉड इज एक्चुअली अ बेटर प्लानर। अगर आप उसके ऊपर विश्वास, आपका बिलीफ सिस्टम आपका पावरफुल हो जाए, तो थिंग्स आर गोइंग टू हैपन द वे यू वांटेड, एंड डेफिनेटली बिकॉज उसका भी कोई पर्पस सर्व होता है, एंड वी बिकम अ मीडियम फॉर इट। डेफिनेटली व्हाई नॉट, नेचर वांट्स टू एक्सपांड समवेयर, यू नो, दे नीड समवन थ्रू whom नेचर आल्सो कैन एक्सपांड। तो ये बिल्कुल सही बात आपने बताई, और मुझे ऐसा लगता है आई वांट टू कंटिन्यू दिस कन्वर्सेशन। फिर से भी अगर हम इस टॉपिक पे इस तरह की बातों को लेकर फिर से मिले, इंटरेक्ट करें, कुछ ऐसी बातें जो एक्चुअली लाइफ में बहुत सारे लोगों को छोटी छोटी चीजों को चेंज करने में, बिकॉज इफ द चेंज इज अ कांस्टेंट थिंग इन लाइफ, लॉट ऑफ थिंग्स कैन इम्प्रूव, बिकॉज इम्प्रूवमेंट आपके छोटे छोटे चेंजेस की वजह से आते हैं। और आज हम वैसे तो इस प्लेटफॉर्म पे इस वक्त हम व्हाई नॉट नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बात कर रहे हैं, जहां हम परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, जहां हम ड्रीम्स ड्रिवन लाइफस्टाइल की बात कर रहे हैं, अपने अंदर के चाइल्ड को एक्टिवेट रखने की बात कर रहे हैं, जिससे आप डिसीजन ले पाओ, आपकी सिंप्लिसिटी, आप नेटवर्क मार्केटिंग के साथ कनेक्ट होके बहुत ज्यादा फियर महसूस ना करो, आपके अंदर ऐसी मतलब फालतू के डर ना हो, मतलब वो कहते हैं ना कि फॉल्स फियर जो है ही नहीं, लेकिन आपके अंदर कहीं ना कहीं पल रहा है, किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कोई पास्ट की कंपनी के बारे में बात कर दिया, और अभी भी आप उसका बोझ लेके चल रहे हो। आपकी बात यहाँ काटूंगा, आपने जो कहा ना फॉल्स फियर, जी सर, सी फॉल्स फियर को मैं थोड़ा टर्न करूंगा, मैं कहता हूँ फियर इज ऑलवेज फॉल्स। ओके, फियर इज ऑलवेज फॉल्स। यू नो द रीजन फियर इज द फ्यूचर टेंस। ओके, प्रेजेंट टेंस नहीं, आप समझते हो, आप इंग्लिश सिखाते हो लोगों को, पर फियर इज ऑलवेज फ्यूचर टेंस। अगर ऐसा हुआ तो, या फियर इज समथिंग लाइक दैट, हुआ तो, करेक्ट। व्हाट इफ आई फॉल डाउन? If I fall down. What if I fall down? Right. What if I meet an accident? Right. What if I don't succeed? What if I don't succeed? Right. ठीक है, तो fear is future tense. वो वर्तमान में fear हो ही नहीं सकता। क्या बात है? Possible. अपने दिल को पूछो यार, fear नहीं है, ask yourself. सर बहुत मजा आ रहा है आपसे बात करके, कि you are very I would say it's very light conversation। ऐसा लग रहा है कि लाइफ कितनी सिंपल है, एक्चुअली हमने बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर दी है, चीजें बहुत आसान हो सकती है, और एक्चुअली अगर आप चीजों को सोचे तो हमारी इंट्यूटिव नेचर या फिर कुदरत ने हमें बनाया इतना सिंपल, पर इतना हम आउटसाइड इन्फ्लुएंस, बहुत सारे अलग अलग लोगों के माइंड को इकट्ठा करके अपने अंदर को बहुत ज्यादा फियरफुल बना रहे हैं। और फियर इज अ फ्यूचर टेंस, इट हैज नो कनेक्शन विद प्रेजेंट, सो अननेसेसरी डरने की कोई जरूरत भी नहीं। So Mithilesh ji, it was an amazing conversation. The show must go on. We want you here back on this platform once again to talk. आज तो हमने Why Not Network Marketing की बात की, लेकिन जैसे आपकी प्रोफाइल है, हम चाहते हैं हेल्थ एंड फिटनेस पर भी आप हमारे साथ बात करें, और एक ऐसा सेशन भी हम करें साथ में जहाँ पे इन चीजों को लेकर, कभी कभी डोले शोले बना करने के चक्कर में कुछ लोग बहुत सारी गलत चीजें भी अडॉप्ट कर लेते हैं, एंड देन दे सफर मिजरेबली। सो आई हैव सीन दैट यू हैव सॉल्व्ड मेनी केसेस, मेनी प्रॉब्लम्स फॉर पीपल, even just by activating right mindset, even for health. So we want to know more on that in the next coming session. So thank you so much for coming here on this platform and sharing your, thank you so much sir. So here it was Mithilesh Chudgar from Ahmedabad, Gujarat, India, working at a national and international level for lot many people, improving their health, their mindset, their emotional quotient, and also helping people for their spiritual health. 4 dimensions of health is very very important according to Mithilesh ji. आप physical, mental, emotional and spiritual, इन चारों चीजों को अगर फोकस करते हैं, life can be wonderful, amazing.
I love one thing very very important he shared that बच्चा आपके अंदर है, आप बच्चा बन के जिए और अपने आप को पूछिए, ask yourself, how do you feel when you take any decisions? If you feel light, comfortable, if your intuitive attitude, if your mindset is saying go for it, do not think too much, क्योंकि लॉजिक से बहुत ज्यादा पैरालिसिस हो सकता है, लेकिन अगर आप दिल से कुछ चीजें करते हैं वो चीजें हैपनिंग में आ जाती है. एंड यस, देयर इज अ पावर बिहाइंड इट, देयर इज अ साइंस बिहाइंड इट. हम शायद नहीं जानते लेकिन ऐसा होता है. इसी वजह से when we listen to such conversation, Mithilesh ji is also willing to share the way he shared. नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री उन्होंने इसलिए चूज की, वो इसको इसलिए यकीन करते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों की लाइफ बदली जा सकती है. Anyone can work with a common man and guide that person. There are people out in the world, they need some mentorship, some support, some hand holding, a support where they can feel they can also do it. So ये knowledge के साथ होता है, strength के साथ होता है, togetherness से होता है, लाखों रुपए का investment नहीं होता, आप अपनी life को dream driven ले जा सकते हो and right mastermind के साथ connect होकर लाइफ में बहुत सारी चीजें exponentially, abundantly grow कर सकते हो. So thank you so much for listening to this wonderful conversation, watching us on Be Capacited platform. You can share, subscribe, and also comment on the comment box about this show. Thank you so much. Good night. Shubh Ratri. Alone